है नमन उनको जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने है बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। It is indeed a proud moment for every citizen. Independence Day celebration gives me a feeling of immense joy, which is incredible in words when I see our tricolor flag soaring up in the sky. Now we will have our traditional and auspicious flag hosting ceremony as a tribute to our motherland. May all the living beings live in harmony with nature and all the other forms of life. May the truth prevail. बलिदान से जो आजादी मिली वह विरासत है हमारी। निज रक्त से लिख गए वह इतिहास अब उसकी रक्षा की बारी है हमारी। हर भारतवासी में वतन की आन बान शान की रक्षा का प्राण फूंकने और हम विद्यार्थियों की चेतना में देशभक्ति का शंखनाद करने आ रही है हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना निगम जी अपने भावपूर्ण संदेश के साथ। Greetings everyone. Happy Independence Day to one and all. At the dawn of 15th August 2021, we all are filled with nationalistic fervor to commemorate the 75th Independence Day of our country. Today, we are also here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate this 75th Independence Day of our country. The young and the old in India are humbled at the sacrifices made by our stalwart Indian freedom fighters who did not hesitate to shed their blood. We enjoy the freedom, equality and liberty due to their struggle and sacrifices. The freedom fighters like Mahatma Gandhi, who believed in non-violence and Quit India movement, saw the emerging of a powerful and independent nation resplendent with the essence of Indian culture and unity in spite of diversity. We hope that today all the Indians would awaken to their roles in nation building and carve a niche nationally and internationally. So it's a time to leave a legacy of truth and sustainability that would create amicable and tolerant atmosphere for all the sections of our society. I feel proud to be an Indian and of what elements the nation stands for today. And keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future of our motherland. Thank you so much. Jai Hind. काटने से कटेंगे नहीं, मारने से मरेंगे नहीं। 135 करोड़ भारतवासी हैं, भारतीयता से हटेंगे नहीं। ऐसा ही जुनून, ऐसा ही जज्बा लेकर आ रहा है हमारा छात्र दल, एक सुमधुर सुरसरिता लेकर, जिस गीत के बोल हैं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारती रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Harivansh Rai Bachchan needs no introduction. His writings are considered to be a landmark in Hindi literature. A rebellious poet who romanticized life, he penned some great poems that remain etched in the reader's hearts forever. So here we have Manya, who would recite one of his creativity. Ever wondered what were the emotions that drove the freedom fighters of a country to sacrifice their life so just their coming generation could live and breathe in a free country as a united nation? That very patriotic fervor is best captured by legendary Indian poets whose words inspired the young guns of India to revolt and fight for better tomorrow. We are free and our flag flies like clouds. Joy girls are adorned with diamonds and pearls. The time to parley with them is over now. Only puppets sit adorned with them. We have broken and thrown away the shackles on our feet. The tradition of past men we have received, with head held high and the snow-laden mountains. We are free and our flag flies like clouds. देश की प्रगति और विकास के लिए हाँ, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति हम आपके सम्मुख करने जा रहे हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से। ऋषियों के तप, त्याग, तेज गुण, मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। आज हम जिस भूमिका में हैं, वहाँ से हम राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं? लघु नाटिका के माध्यम से आपके सामने एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत हो रही है। भगत, राजगुरु, सुखदेव, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी मातृभूमि के लिए सदा सदा के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ। कि मेरे खून की एक एक बूंद मेरे देश के काम आए। हम तीनों भाइयों को एक बार गले मिलने दिया जाए। आजादी को पूरे 74 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी क्या हम आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपने को पूरा करने में अपना सहयोग दे पा रहे हैं? क्या थी आजादी? आइए देखते हैं एक किसान की नजर से। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? आजादी नहीं कुछ कमाने की, आजादी नहीं कुछ खाने की। ना पूछो हाल वतन पे मरने वालों का, वतन को रचने वाले ही वतन पर राज कर बैठे। ऐसा नहीं है मेरे मित्र, देश में समस्याएं थी, पर आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे आज के भारत की तस्वीर। कोई नेताओं को जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में किस तरह अमीर, गरीब, लाचार सबको सहारा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस कठिन परिस्थिति में जबकि सारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, देश की जनता को सभी सुविधाएं, दवाइयाँ, अस्पताल में बेड, निःशुल्क खाना, इन सभी सुविधाओं का प्रबंध करने का संकल्प लेता हूँ।
देखो इन डॉक्टरों को जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात समाज की सेवा कर रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं वो आग, बस वो आग जलनी चाहिए। वीरों की विरदावली कुर्बानी की राह चली, वाणी भी जिनकी गाथा गाते गाते किस राह चली। एक सुंदर काव्य प्रस्तुति का आनंद लीजिए। Better than heaven or Arcadia, I love thee, O my India, and thy love I shall give to every brother nation that lives. God made earth, man made confining countries and their fancy frozen boundaries. But with unfound boundless love, I behold the borderland of India. Expanding into the world, hail mother of religions, lotus, scenic beauty, sages. Thy wide doors are open, welcoming God's true sons through all ages. Where Ganges, woods, Himalayan caves and men dream God, I am hallowed, my body touched that sod. Thank you. Now we have a beautiful music rendition by Ninan to stir our hearts. The cultural glory of our nation depicting Indian art form is showcased in this alluring dance performance. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती है वतन उनको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। मेरा जूता है जापानी, है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तुझे सलाम, तुझे सलाम। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, गुरुजनों, अतिथि अभिभावकों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को आजादी की स्वर्ण 75वीं वर्षगांठ की मंगलमय शुभकामनाएं। आह्लाद, सकारात्मकता, शुभ विचारों एवं उम्मीद से भरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज पुनः अपने अमर शहीदों, आजादी की दीवानों की शहादत पर कृतज्ञता व आभार की श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सुअवसर मिला है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान का गौरव ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। India is developing in every field: technology, education, sports, finance, etc. It is rich in nuclear power. We have right to choose our government and enjoy largest democracy in the world. On this momentous day, let's pledge of being highly responsible, honest and educated citizens of India.